Assalamualaikum. Today we are going to start lecture number 20. It is about infinite series. In the last lecture we have studied about infinite sequences. Today we are going to start infinite series. In the last lecture we have studied infinite sequence, convergence and divergence of sequence, diverges to infinity, the continuous function theorem for sequences, sequence constructed recursively, bound, upper bound and least upper bound of sequences, non-decreasing sequence theorem. In today's lecture we will study about infinite series and nth term, geometric series, convergence and divergence of geometric series, comparison test, ratio test, root test, convergence test, alternating series, absolute and conditional convergence, P-series. After going through today's lecture, you will learn the concept of series and you will learn the different methods to find the convergence of different types of series. First, let's talk about infinite series. What is the difference between sequence and series? Sequence is a set of numbers in some pattern, and series is sum of its terms, sum of the terms of sequence. So the sequence of an expression of the form a1 plus a2 plus a3 plus up to so on an is an infinite series. The number an is nth term of the series, and the sequence Sn defined by S1 is equal to A1, S2 is equal to A1 plus A2 up to Sn is equal to A1 plus A2 up to An. Means S1 is equal to first term of the sequence, S2 is sum of first two terms, S3 is sum of first three terms, and so on. These sums are called sequence of partial sums of the series. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? Partial sums. The number Sn being the nth partial sum, यानी n terms का जो sum है उसको हम nth partial sum बोलते हैं. If the sequence of partial sums converges to the limit L, we say that the series converges and that is its sum is L. ठीक है, यानी अगर partial sum converge कर रहा है किसी limit L को, तो series भी converge करेगी और वो उस series का sum L के equal है. And if sequence of partial sums of the series does not converge, we say that the series diverges. ठीक है, अगर sequence यानी हमारे पास ये sequence, इनके sums, partial sums का जो sequence है S1, S2, S3 up to so on Sn, ये sequence अगर converge करेगा किसी limit L को, तो ये series जो है ये converge करेगी और इस series का sum L होगा. अगर ये sequence, ये वाला sequence अगर diverge करेगा तो series diverge करेगी. Now geometric series. Geometric series इस फॉर्म में होती है a plus ar square up to so on ar power n minus 1. a हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है. r is ratio of consecutive terms, ठीक है. So here it is defined a in which a and r are fixed real numbers and a is not equal to 0. The series can be written as summation n 0 to infinity a r power n. ठीक है, तो series को हम summation की फॉर्म में लिख सकते हैं. Summation means sum of these terms where n is from 0 to infinity. The ratio r can be positive as in the following series. अब इस series में देखें, this is geometric series, ठीक है. अब इसकी first term a है 1, a is equal to 1, और अगर हम इसके रेशियो की बात करें तो आप कंसेक्टिव टर्म्स का अगर रेशियो लें तो वो सेम होता है, ठीक है. तो हमारे पास फर्स्ट टू टर्म का रेशियो 1/2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1/2. सेकंड और थर्ड टर्म का रेशियो अगर आप लें तो ये भी हमारे पास 1/2 के इक्वल है.
ठीक है, यानी कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम होता है ज्योमेट्रिक सीरीज में, ठीक है। और ये इसकी nth टर्म है 1/2 रेज टू पावर n-1, ठीक हो गया। और हमारे पास रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है, जिस तरह यहाँ पे है, हेयर a इज इक्वल टू 1 एंड r रेशियो इज फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर हम रेशियो लें पर -1/3 आ रहा है, तो यहाँ पे जितने भी रेशियोज हैं वो नेगेटिव हैं। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज में रेशियो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस टाइप के इसके nth टर्म होते हैं, इस सीरीज को ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। If r is equal to 1, the nth partial sum of geometric series is Sn, a plus a1 plus a1 square up to so on which is equal to na, ठीक है। यानी अगर हमारे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो 1 है, दैट इज r इज इक्वल टू 1, अगर हम ज्योमेट्रिक सीरीज में r को 1 कर दें तो ये बेसिकली हमारे पास सारी टर्म्स a ही बन रही हैं, ठीक है। यानी अगर हमारे पास n टर्म्स हैं तो इनका सम nth पार्शियल सम किसके इक्वल है, n मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सीरीज है, ये सीरीज डाइवर्ज कर रही है क्योंकि इसका जो nth पार्शियल सम है वो इन्फिनिटी है, ठीक है। एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इट गिव्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी आ जाए तो हमारा जो भी सीक्वेंस होता है वो डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पे सीरीज के लिए अगर हमारे पास हम nth पार्शियल सम पे चेक कर लें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर डाइवर्ज कर रहा है तो सीरीज डाइवर्ज करेगी। Depending on the sign of a, if r is equal to -1, the series diverges because the nth partial sum alternate between a and 0, ठीक है। अगर r -1 है तब भी हमारे पास सीरीज डाइवर्ज करेगी, ठीक है, क्योंकि nth पार्शियल सम में हमारे पास सम जो है वो अल्टरनेट होगा बिटवीन a to 0, ठीक है। So absolute value of r is not equal to 1, we can determine the convergence or divergence of the series in the following way. ये हमारे पास nth पार्शियल सम है, इसको हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नाउ we had taken difference of nth partial sum and this term, इसका हमने डिफरेंस लिया है, तो जब हमने डिफरेंस लिया तो ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। और हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म ऑफ nth पार्शियल सम एंड सेकंड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस हमारे पास रह जाएगी, ठीक है। इज a माइनस ए आर एन माइनस 1, इसमें से एस एन कॉमन ले लिया, ठीक है, 1 माइनस आर रह गया, तो यहाँ से nth पार्शियल सम इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर, दिस इज फॉर r इज नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, अब हम इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को डिस्कस करेंगे। इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1, ठीक है। अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1, दैट इज r हमारे पास -1 और 1 के दरमियान है अगर, तो हमारे पास जो r n है वो 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि अगर हमारे पास -1 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर होता है उसके हम पावर इंक्रीज करते जाएं तो वो नंबर डिक्रीज होता जाता है, 0 को अप्रोच करता जाता है। तो ये जो आपके पास r n है ये 0 को अप्रोच करेगा फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r लेस देन 1 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये अगर 0 के अप्रोच करेगा तो हमारे पास जो nth पार्शियल सम है वो किसको अप्रोच करेगा, ये 0 हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे a रह जाएगा, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ठीक है। यानी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज का सम किसके इक्वल होता है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, where a is first term of the geometric series and r is the ratio of any consecutive terms of the series. And for absolute value of r greater than 1, then r power n approaches to infinity and the series diverges. यानी geometric series जो है वो just r की इस वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगी और for r greater than 1, absolute value of r greater than 1, it diverges. So this is the convergence and divergence of geometric series which we had discussed in the very last slide.
ये हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज करती है, ठीक है। और किस वैल्यू को कन्वर्ज करती है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, यानी ज्योमेट्रिक सीरीज अगर कन्वर्ज करेगी तो उसका सम किसके इक्वल होगा, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। और अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन दिस सीरीज डाइवर्जेस। एग्जाम्पल 1 में देखें, द ज्योमेट्रिक सीरीज विद a इज इक्वल टू 1 बाय 9 एंड r इज इक्वल टू 1 बाय 3, ठीक है। इसमें a 1 बाय 9 है और इन दोनों का अगर आप रेशियो लें तो ये हमारे पास r किसके इक्वल होगा, 1 डिवाइड बाय 27 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 9, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 27, 9 3 आर 27, दिस इज 1 बाय 3। यहाँ पे रेशियो आपके पास 1 बाय 3 है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज को हम लिख सकते हैं समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a r पावर n माइनस 1। यहाँ पे a 1 बाय 9 है और r 1 बाय 3 है, इसकी पावर n माइनस 1 है। we have to find the sum of the series। तो ये कन्वर्ज कर रही है क्योंकि r हमारे पास 1 बाय 3 है which is less than 1, तो ये कन्वर्ज करेगी और इसका सम क्या होगा, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, हियर a इज 1 बाय 9 एंड r इज 1 बाय 3। इसको कैलकुलेट करें तो इस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम 1 बाय 6 के इक्वल है, ठीक हो गया। सिमिलरली हमारे पास ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है, ठीक है। इसमें ये -1 पावर n का मतलब है n जब 0 है तो इट इज़ इक्वल टू 1, जब 1 है तो ऑड पावर है तो ये -1 होगा, यानी ऑल्टरनेट जब भी -1 की पावर n या यहाँ पे n+1 आ रहा है तो इट मीन्स के ऑल्टरनेटिव साइंस होंगे टर्म्स के, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है, n जब 0 है तो 5 आ रहा है, नेक्स्ट टर्म जब n को 1 पुट किया तो 5/4 एंड सो ऑन। Here a is equal to 5 and r is equal to -1/4। अब ये भी कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि हमारे पास r एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1, ठीक है। सो इट्स सम विल बी a डिवाइड बाय 1 माइनस r, ये वैल्यूज हमने पुट की, सो द सम ऑफ द गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज इज 4। In example 3, express the repeating decimal 5.232323 and so on as the ratio of two integers। ये हमारे पास एक recurring decimal given है, हमने इसको एक्सप्रेस करना है as a ratio of two integers, ठीक है। यहाँ पे इस डेसिमल को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 प्लस 23 डिवाइड बाय 100 प्लस 23 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। देखें जब हमारे पास ये वाला 23 आएगा तो ये 100 इस 23 के लिए 23 डिवाइड बाय 100। जब हम नेक्स्ट वाले इस वाले 23 पे आएंगे तो ये हमारे पास 00 यानी 100 का स्क्वायर। जब इस वाले 23 पे आएंगे तो फिर 2 zeros आ जाएंगे यानी 100 का क्यूब एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म्स हैं इसमें से 23 डिवाइड बाय 100 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय 100 प्लस 1 बाय 100 स्क्वायर एंड सो ऑन ये रह जाता है। तो ये जो हमारे पास ब्रैकेट में जो सीरीज है दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर आप देखें इनका कंसेक्टिव टर्म्स का रेशियो सेम है, ठीक है, एंड दैट इज 1 बाय 100 एंड हियर a इज इक्वल टू 1। तो इस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम हमारे पास a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r है, ठीक है। Here a is 1 and r is 0.01, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये सम है इस ज्योमेट्रिक सीरीज का, ठीक है। तो बाकी वैल्यूज एज इट इज़ हैं, इसको आप कैलकुलेट कर लें आप तो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में ये डेसिमल आ जाता है 518 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है। यानी हम सीरीज़ के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम किसी रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। द nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस। इफ summation n is equal to 1 to infinity a n converges then a n approaches to 0, ठीक है। यानी अगर कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो उस सीरीज में जो आपके पास उसका सीक्वेंस है वो 0 को अप्रोच करेगा।
The nth term test for divergence. If the series diverges, this series diverges if limit as n approaches to infinity a n fails to exist or is different from 0. ठीक है, अगर कोई सीरीज डाइवर्ज करिए तो उसकी वजह क्या हो सकती है कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस पे जब हम लिमिट अप्लाई करें n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इट फेल्स टू एग्जिस्ट और इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 0. एग्जाम्पल 4 में देखें, दिस सीरीज इज डाइवर्जेस. उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है n², इस पे जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इट इज़ इक्वल टू इंफिनिटी. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, दिस सीरीज आल्सो डाइवर्जेस. उसकी वजह क्या है कि ये सीरीज, इसमें जो हमारे पास nth टर्म है दैट इज़ 1 + 1/n, इसमें मैंने n डिवाइड कर दिया. इस पे जब हम लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी अप्लाई करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू 1 + 0 दैट इज़ 1. तो हमारे पास एक सेकंड वाला थ्योरम क्या था कि अगर वो अदर देन 0 है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तब भी ये सीक्वेंस, ये सीरीज डाइवर्ज करेगी. ठीक है, इसी तरह ये जो आपके पास सीरीज है, इसकी ये nth टर्म भी डाइवर्ज कर रही है. ठीक है, उसकी वजह क्या है कि ये हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑफ दिस सीक्वेंस डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करती. डी पार्ट में भी आपके पास ये डाइवर्ज कर रहा है क्योंकि हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू -1/2. ये पोलिनोमियल्स हैं. पोलिनोमियल्स का लिमिट किस तरह से फाइंड करते हैं, इसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म्स को जस्ट लिख लें तो ये -1/2 आता है. इस पर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पुट करें तो हमारे पास -1/2 आ रहा है, विच इज़ अदर देन 0. सो इट डाइवर्जेस. यानी कोई भी सीरीज डाइवर्ज कब करती है, अगर उसमें जो सीक्वेंस है उसकी nth, उसमें जो सीरीज की nth टर्म है वो एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी अगर तो एग्जिस्ट नहीं कर रही या फिर अदर देन 0 है तो सीरीज डाइवर्ज करेगी. These are some rules for series. If summation an is equal to a and summation bn is equal to b, यानी ये दो सीरीज हैं, उनके सम हमारे पास, फर्स्ट सीरीज का सम a है, सेकेंड सीरीज का सम b है, और कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट है तभी उनका सम एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, देन सम रूल, जिस तरह हमने सीक्वेंसेस के लिए पढ़ा है, सम रूल हमारे पास क्या है, हम इंडिविजुअली दोनों सीरीज के सम लेके उनको ऐड कर सकते हैं. इसी तरह डिफरेंस के साथ भी सेम ही केस है. और अगर हमारे पास किसी सीक्वेंस के साथ, सीरीज के साथ जो nth टर्म है उसके साथ कोई नंबर k मल्टीप्लाई हो रहा है तो k को हम समीशन से बाहर रख सकते हैं और हम सीरीज का सम ले लें और उसको फिर k से मल्टीप्लाई करते हैं. फाइंड द सम्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. अभी हमारे पास कुछ सीरीज गिवन है, इनके हमने सम्स फाइंड करने हैं. पहले ए पार्ट देख लेते हैं. ए पार्ट में हमारे पास ये सीरीज गिवन है. ठीक है, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं. यानी हम लोगों ने 3n-1 को डिवाइड कर दिया 6n-1 -1 डिवाइडेड बाय 6n-1. ठीक है, यानी इसको हमने इंडिविजुअली दोनों टर्म से डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हम इसको 3n-1 लिख सकते हैं और यहाँ पे इसको अगर हम स्प्लिट कर दें तो 2 पावर n-1 एंड 3 पावर n-1. ठीक है, 2 3 6 होता है. ठीक है, तो इस होल की पावर n-1 है तो इन पे हम पावर इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं. -1 डिवाइडेड बाय 6n-1. तो ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी. सो वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म्स. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दोनों टर्म्स हैं, दीज आर ज्योमेट्रिक सीरीज. ठीक है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक सीरीज है, दिस इज 1/2 n-1 एंड सेकेंड इज 1/6 n-1. ठीक है, अब इन दोनों के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, हमारे पास सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, n इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity a r पावर n-1. तो यहाँ पे दोनों ज्योमेट्रिक सीरीज में, पहले अगर हम फर्स्ट की बात करें
तो इसमें हमारे पास a 1 के इक्वल है और r हमारे पास 1/2 है, यानी जिसकी पावर में n-1 है वो हमारे पास r है। ठीक है, अब यहाँ पे भी a इज इक्वल टू 1 है एंड r इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो इनके सम क्या होते हैं, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये हमने सम फाइंड कर लिए हैं दोनों के। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट सीरीज का 2 है सम एंड सेकंड सीरीज का 6/5। इनको ऐड किया तो हमारे पास 4/5 आंसर आ जाता है। हमने सम्स फाइंड करने थे सीरीज के। इसी तरह हमने यहाँ पे देखें डिफरेंस रूल यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये सीरीज है, इसमें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को हम समीशन से बाहर ले जाते हैं और हम जस्ट इस वाली सीरीज को का सम ले लेते हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज है दैट इज n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको हम होल पावर n भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो हियर a इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 1/2। तो ये सम हमारे पास है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इस सीरीज का सम 8 आ जाता है। ये आपके पास एक्सरसाइज है जो मैट्रिक्स सीरीज से रिलेटेड, इसको आप लोग प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट इज कंपैरिजन टेस्ट। अब हम कुछ डिफरेंट टेस्ट पढ़ेंगे फॉर द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ, टू चेक द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। कंपैरिजन टेस्ट में हमारे पास क्या है, लेट समीशन a and b a series with no negative terms. Summation a n converges if there is a convergent series summation c n with a n is less than or equal to c n. ठीक है, for all n greater than n for some integers n. ठीक है, समीशन a n ये सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, अगर हमारे पास एक ऐसी कन्वर्जेंट सीरीज मौजूद है जिसकी टर्म्स, इन दोनों सीरीज के टर्म्स के दरमियान ये रिलेशन है, यानी a n इज लेस देन और इक्वल टू सी एन, यानी हमारी जो ओरिजिनल सीरीज है उसकी जो टर्म्स हैं वो ये जो हमने दूसरी सीरीज ली है सी एन, इसकी टर्म्स से लेस है फॉर ऑल एन। एंड समीशन ए एन डाइवर्जेस इफ देयर इज अ डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म समीशन डी एन विद दिस रिलेशन। डाइवर्ज कब करेगी, अगर हमारे पास एक ऐसी सीरीज मौजूद है जिसकी टर्म्स जो हैं वो इसकी टर्म से लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक सीरीज है। ठीक है, इसकी अगर हम टर्म nth टर्म लें 5/5n-1, इट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n-1/5। इधर हमने 1/5 से यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें दिस टर्म इज़ ग्रेटर देन 1/n, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास टर्म है उसमें n में से टर्म माइनस हो रही है, यानी दिस टर्म इज़ ग्रेटर देन दिस टर्म। तो अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो ये पूरा जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास छोटा होगा। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू n। ठीक है, सो दिस होल फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन 1/n। ठीक है, तो हमारे पास 1/n जो है 1/n डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, 1/n इज डाइवर्जेंट सीरीज, सो this series is also divergent. Ratio test. Let summation a n be a series with positive terms and suppose that limit n approaches to infinity a n plus 1 divided by a n is equal to rho. Then the series converges if rho is less than 1, diverges if rho is greater than 1 or rho is infinite, and test is inconclusive if rho is equal to 1. तो रेशियो टेस्ट में हमने ये लिमिट फाइंड करनी है और सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में ये हमारे पास सीरीज है। ठीक है, हमने इसकी n+1 टर्म और nth टर्म का रेशियो लिया। ठीक है, रेशियो को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया है, 1/3 हमने लिख लिया है और इधर हमने इसको डिवाइड कर दिया है 2 पावर n से। हमारे पास ये वाली टर्म आ गया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 पावर n से डिवाइड किया है
हमारे पास ये टर्म्स आ गई हैं। फिर हम इस पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। यहाँ पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो ये 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/1 रह जाएगा विच इज़ 2/3। ठीक है, नाउ 2/3 रो की वैल्यू दिस इज लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए हमारे पास क्या है, दिस सीरीज converges. ठीक है, the series converges because row is less than 1. So this does not mean that 2/3 is the sum of the series. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये इस सीरीज का सम है। If we are interested to find the sum of this series, तो इसको हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास दो सीरीज बन जाती हैं। नाउ बोथ सीरीज आर ज्योमेट्रिक सीरीज, तो ज्योमेट्रिक सीरीज का सम अभी आपने लास्ट एग्जांपल्स में फाइंड किया, तो उसी तरह ज्योमेट्रिक सीरीज का सम हम फाइंड कर लेंगे। तो इस सीरीज का सम हमारे पास 21 डिवाइड बाय 2 आ जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सीरीज है उसकी nth टर्म ये है हमारे पास, n+1th टर्म हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग देखें तो दिस इज बी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास nth टर्म है, दिस इज n+1th टर्म, इनका रेशियो लिया। ठीक है, रेशियो लेने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2n फैक्टोरियल एंड 2n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2n+2 2n+1 रह जाएगा, और यहाँ पे n+1 और n+1 हमारे पास रह जाएगा। यहाँ से इसको अगर हम देखें तो n इंटू n+1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को हम ये लिख सकते हैं n इंटू n+1 फैक्टोरियल, ये हमने n फैक्टोरियल लिखा है। ठीक है, और ये हमारे पास 2n+2 और 2n+1 डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल, sorry, it is equal to n+1 into n फैक्टोरियल एंड n+1 into n फैक्टोरियल, और ये हमारे पास n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल ही रहेंगे। ठीक है, हमारे पास ये जो n फैक्टोरियल है और ये वाला जो n फैक्टोरियल है ये इन दो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारे पास रह जाएगा ये। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है, इसमें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करें तो हमारे पास पोलिनोमियल का कोशेंट है, तो हायर डिग्रीज टर्म्स को लेंगे, कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास ये 4 को अप्रोच करेगा। Here rho is equal to 4 which is greater than 1, so this series diverges. नेक्स्ट हमारे पास जो सीरीज है सी पार्ट वो ये है। ठीक है, तो इसकी nth टर्म ये है हमारे पास, n+1 टर्म और nth टर्म का रेशियो लिया है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए ये दो टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये जो n+1 फैक्टोरियल है इसको हमने n+1 इंटू n फैक्टोरियल, बेसिकली हमारे पास जो n फैक्टोरियल है वो इक्वल होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल हो गया। सिमिलरली n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये वाला n फैक्टोरियल और ये वाला n फैक्टोरियल हमारे पास इन दो n फैक्टोरियल्स के कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 4n+1 और नीचे 4n है, तो ये 4 की पावर n+1 माइनस n होगा, तो ये हमारे पास 4 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म रह जाती है, इसको सिंप्लीफाई किया, उसके बाद इसमें हमने n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट किया, तो 2n डिवाइड बाय 2n इज इक्वल टू 1, इस पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट किया तो हमारे पास 1 आ गया। हेयर रो इज इक्वल टू 1, और अगर रो 1 की इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसमें ये जो मेथड है ये इनकंक्लूसिव है। ठीक है, we cannot decide from the ratio test whether the series converges when we notice that an+1 divided by an is equal to this. We conclude that an+1 is always greater than an because 2n+2 divided by 2n+1 is always greater than
1. Therefore, all terms are greater than or equal to a1 is equal to 2 and the nth term does not approach 0 as n approaches to infinity. The series diverges. Now the root test. root test में हम लोग ये लिमिट फाइंड करते हैं. ये रूट टेस्ट बेसिकली जब हमारे पास nth रूट आ जाते हैं, पावर में n आ जाता है किसी भी सीक्वेंस के, तो वहाँ पे हम रूट टेस्ट यूज़ करते हैं. दिस इज इसका अगर लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी तो दिस सीरीज इज इक्वल टू रो. यहाँ पे भी सेम कंडीशन है. इफ रो इज लेस देन 1 देन इट इज कन्वर्जेस. इफ रो इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज डाइवर्जेस and if rho is equal to 1 then it is inconclusive. यहाँ पे रूट टेस्ट यूज हुआ हुआ है. ठीक है, फर्स्ट हमारे पास ये कन्वर्ज कर रहा है. ठीक है, कन्वर्ज क्यों कर रहा है, यहाँ पे हम लोग ये फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ये बेसिकली हमारे पास ये जो भी है यहाँ पे हम इसके nth रूट लेंगे. ठीक है, सीरीज. तो यहाँ पे हमारे पास ये सीरीज का हमने इसका nth रूट लिया. ठीक है, nth रूट लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे तो ये nth रूट का मतलब है 1/n पावर. तो इधर ऑलरेडी 2 की पावर n है, 1/n होगा तो ये हमारे पास 2 रह जाएगा. ठीक है, अब इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे. ठीक है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करने से हमारे पास आ जाता है 1/2. ठीक है, विच इज़ लेस देन 1. ठीक है, लेस देन 1 है इसलिए ये हमारे पास कन्वर्ज कर रही है. यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला पार्ट है इसको किस तरह से सॉल्व किया. बेसिकली दिस इज n रेज़ पावर 1/n. तो इसको लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू y. बोथ साइड पे नेचुरल लॉग अप्लाई किया तो यहाँ पे नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यूज हुई है. तो अब जब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ y, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है. ठीक है, तो इस पर लॉपिटल्स रूल लगाए. नेचुरल लॉग ऑफ n का डेरिवेटिव 1/n और n का डेरिवेटिव 1. इस पे जो हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये 0 के इक्वल आएगा. तो ये हमारे पास बेसिकली नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 0. बोथ साइड पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू e पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट है वो 1 के इक्वल आ जाती है, इस पार्ट की लिमिट. ठीक है, ये नीचे कांस्टेंट है तो 1/2 को अप्रोच करेगा as n approaches to infinity which is less than 1, so this series converges. अब ये जो सीरीज है ये डाइवर्ज कर रही है क्योंकि इस पे जब हम रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे इसकी nth पावर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है. n approaches to infinity for this term it approaches to 1. 2 divided by 1 2 which is greater than 1, so this diverges, this series diverges. अब ये वाला पार्ट देखें तो इसमें अगर आप nth रूट लेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास ये रह जाएगा. इसमें इन्फिनिटी पुट करें तो 1/infinity इज 0 विच इज़ लेस देन 1, सो इट कन्वर्जेस. ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दीज टेस्ट, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करें. ऑल्टरनेटिंग सीरीज एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस. ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट. ऑल्टरनेटिंग सीरीज वो है जिसमें हमारे पास साइंस ऑल्टरनेट होते हैं. ठीक है, तो इस टाइप की सीरीज के लिए हमारे पास एक टेस्ट है. ठीक है, इट कन्वर्जेस इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. ठीक है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई करेंगी. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास यू एन आर ऑल पॉजिटिव, यानी इसकी हर टर्म पॉजिटिव होगी. सेकंड क्या है कि हमारे पास प्रीवियस टर्म जो है वो नेक्स्ट टर्म से ग्रेटर होगी फॉर ऑल एन. एंड थर्ड कंडीशन है यू एन अप्रोचेस टू 0 एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. ये तीन कंडीशंस अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज सेटिस्फाई करती है तो वो कन्वर्जेंट सीरीज होगी. अगर कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाती है तो वो डाइवर्ज करेगी. एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. अ सीरीज समेशन an converges absolutely is absolutely convergent if the corresponding series of absolute value converges.
अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ सीरीज कन्वर्ज करेगी तो हम इस सीरीज को कहेंगे इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्ज। फॉर एग्जांपल ये ऑल्टरनेटिंग एक सीरीज है, इसके अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंसिडर करें तो ये हमारे पास सीरीज बनती है, ठीक है। और ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज की एब्सोल्यूट सीरीज है, इट कन्वर्जेस। The alternating harmonic series does not converge absolutely. The corresponding series of absolute values is the divergent harmonic series, ठीक है। तो ये हमारे पास absolutely converge कर रही है। So this is basically geometric series, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास R है, this is 1/2, so R is absolute value of R is less than 1, so it is convergent series. So this series is absolutely convergent. Now what is conditionally convergent? A series that converges but does not converge absolutely is converges conditionally. यानी अगर कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है लेकिन वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं कर रही तो वो कंडीशनली कन्वर्ज करेगी। If this series converges then this series converges, यानी अगर किसी भी सीरीज की एब्सोल्यूट सीरीज कन्वर्ज करेगी तो ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। फर्स्ट एग्जांपल में देखें, इसका ए पार्ट जो है ये हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है। ये इसकी टर्म्स बनती हैं 1 - 1/4 + 1/9। अब इसके अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट सीरीज को कंसिडर करें तो एब्सोल्यूट सीरीज हमारे पास ये बनती है, ठीक है। द ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेस बिकॉज इट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, ठीक है। अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट सीरीज कन्वर्ज करेगी तो हमारे पास जो ओरिजिनल सीरीज है वो भी कन्वर्ज करेगी। और ये हमारे पास कन्वर्ज क्यों करिए, क्योंकि इसका nth पार्शियल सम जो है Sn लिमिट n approaches to infinity, that is limit n approaches to infinity 1 divided by n square is equal to 0, ठीक है, क्योंकि इसकी nth पार्शियल सम जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। बी पार्ट में देखें आपके पास ये सीरीज है, द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज इज दिस, एब्सोल्यूट सीरीज ये है इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन n इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखें अगर हम इसको डिवाइड कर दें n स्क्वायर से बोथ साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस सीरीज इज लेस देन और इक्वल टू 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो अगर कंपैरिजन टेस्ट को देखा जाए, अगर आपकी ओरिजिनल सीरीज किसी ऐसी कन्वर्जेंट सीरीज के साथ ये रिलेशन हो कि इसकी हर टर्म इस सीरीज के हर टर्म से लेस हो तो ये ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्जेंट होंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि 1/n स्क्वायर ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है और हमारे जो यहाँ पे ओरिजिनल सीरीज है इस सीरीज की हर टर्म इस कन्वर्जेंट सीरीज की टर्म से लेस है, ठीक है। तो यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट दिस सीरीज एब्सोल्यूट series is convergent, so original series also converges. P series, if P is positive constant, the sequence 1 divided by n power P is a decreasing sequence with limit 0. Therefore the alternating P series is this with P greater than 0. Converges if P is greater than 1. The series converges absolutely if P is between 0 to 1, and the series converges if P is greater than 1 then the series converges absolutely, and if P is between 0 to 1 then the series converges conditionally, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हमने देखा है ये 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो P सीरीज, ठीक है। यहाँ पे P
इज इक्वल टू 2, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन विच इज ग्रेटर देन 1 की कंडीशन, ठीक है। इफ इट इज ग्रेटर देन 1 देन दिस सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, ठीक है। तो ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो हम लोग पी सीरीज भी यूज कर सकते हैं। अब जिस तरह ये हमारे पास देखें, एक सीरीज है हमारे पास यहाँ पे ये सीरीज बेसिकली हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय n पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पे p 1/2 है विच इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब है यानी 0 और 1 के दरमियान है, तो दिस सीरीज कन्वर्जेस कंडीशनली। कंडीशनली का सीरीज की डेफिनेशन क्या है कि सीरीज ओरिजिनल सीरीज कन्वर्ज करती है लेकिन एब्सोल्यूट सीरीज कन्वर्ज नहीं करती, ठीक है। इसी तरह अगर इसमें देखें तो इसमें हमारे पास 3/2 है, 3/2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1.5 है। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, सो इट इज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, ठीक है। ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है। ये कुछ समरी है। द nth टर्म टेस्ट अनलेस an अप्रोचेस टू 0 द सीरीज डाइवर्जेस। ज्योमेट्रिक सीरीज, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये कन्वर्ज कब करेगी, जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1, अदरवाइज इट इज डाइवर्जेस। p सीरीज में हमारे पास कन्वर्ज कब करेगा, इफ p इज ग्रेटर देन 1, अदरवाइज इट इज डाइवर्जेस। सीरीज विद नॉन नेगेटिव टर्म्स, try the integral test, ratio test or root test. Try comparing to a known series with the comparison test. अगर हमारे पास सीरीज के नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं तो आप ये वाले टेस्ट यूज कर सकते हैं। सीरीज विद सम नेगेटिव टर्म्स, does absolute series converge? If yes, so does summation an, since absolute convergence implies convergence। अगर हमारे पास नेगेटिव टर्म्स भी हैं तो हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर एब्सोल्यूट सीरीज और आपकी ओरिजिनल सीरीज अगर ये है, अगर इसकी एब्सोल्यूट सीरीज कन्वर्ज करिए तो ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। ऑल्टरनेटिंग सीरीज converges if the series satisfies the conditions of the alternating series test। तो अभी हमने जो alternating series test की conditions पढ़ी थी, अगर वो 3 conditions कोई भी alternating series satisfy कर ले तो alternating series converge करती है। तो हमारे पास एक ही series में हम different tests भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी टेस्ट जो उस पर लग सकता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं, इसको आप लोग सॉल्व करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।